میں حیران ان حکمرانوں پر ہوں، ان افواج پر ہوں کہ محشر کے میدان میں محمد رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے یہ لوگ جب اللہ کا رسول پوچھے گا میں نے کہا تھا المسلمون کجسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اللہ کا رسول کہے گا میں نے کہا تھا یہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، یہ بارڈر تو تم لوگوں نے ڈال دیے تھے، یہ نفرتیں تو تم لوگوں نے پیدا کیے، ایک دوسرے کو مارنا تو تم لوگوں نے ایجاد کیا، میرا تو ایک ہی امت ہے، میں نے تو فرمایا ہے کہ جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوگا وہ ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر فلسطین میں مارا جا رہا ہے تو یوں محسوس کرو کہ مجھے مارا جا رہا ہے، میری ماں کو مارا جا رہا ہے۔ کسی کو احساس ہے؟ ہمارے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ ہم جا کر لڑ سکے، وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، مگر ہمارے اندر خدا کی قسم اتنی غیرت بھی نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کے مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکے۔ اس سے آسان کوئی کام ہے؟ کہتے ہیں فتویٰ لے کر آؤ کہ اسرائیلی مصنوعات استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ فتویٰ کا بات ہے ہی نہیں، یہ ایمانی غیرت کا بات ہے۔ شرم سے ڈوب مرو کہ آپ اس موقع پر فتویٰ مانگ رہے ہو۔ آپ کے اندر ایمان کا اگر ایک ذرہ بھی ہے تو آپ اسرائیلی مصنوعات کو کیسے استعمال کر سکتے ہو؟ کہتے ہیں میرا ایک پیپسی بوتل خریدنے سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ ایک بوتل خریدو گے، جو پیسہ دو گے اس سے اگر اسرائیل ایک بلوٹ خریدے گا، ایک گولی خریدے گا، وہ گولی کسی فلسطینی بچے کے سینے میں پیوست کر دے گا۔ آپ کے پیسوں سے خریدے گئے اسلحے سے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے۔ آپ کے اندر اتنا احساس نہیں ہے کہ آپ ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، آپ ان کے کولڈ ڈرنکس کا بائیکاٹ کریں، آپ ان کے جو بھی مصنوعات ہیں، چاہے صابن ہے، شیمپو ہے، کھانے پینے کی چیزیں، کیا اس کے بغیر آپ مر جاؤ گے؟ اگر آپ کا ضمیر مر چکا ہے تو آپ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خود کو زندہ نہ کہو بلکہ آپ ایک زندہ لاش ہو، جہاں پر ہمارے 10,000 مسلم بھائیوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور آپ کے اندر اتنا احساس نہیں کہ ان کے بوتلوں کو پی رہے ہو۔ کہتے ہیں یہ تو فرنچائز ہے، انہوں نے خریدا ہے، ان کے پاس صرف، باقی ہمارا تمام پیسہ ہمارے مسلمانوں کے پاس جاتا ہے، صرف 5% اسرائیل کو جاتا ہے۔ میں نے کہا نا اگر آپ کو پتا ہو کہ میرے باپ کو مارا جا رہا ہے، آپ کو پتا ہو میرے بہن کے سینوں کو گولی سے سوراخ کیا جا رہا ہے، آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ میرے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور اس میں اگر آپ کا ایک پیسہ بھی لگ رہا ہو، ایک پیسہ، تو آپ مجھے بتاؤ آپ وہ ایک پیسہ لگاؤ گے اپنے باپ کے قتل میں؟ آپ وہ ایک پیسہ لگاؤ گے اپنے ماں کے قتل میں؟ آپ وہ ایک پیسہ لگاؤ گے اپنے بچوں کے قتل میں؟ کہاں نہیں لگائیں گے؟ کہاں؟ میں نے کہا اگر یہ 5% آپ کی وجہ سے جا رہا ہے تو یہ 5% بھی نہیں جانا چاہیے۔ سٹنگ بوتل نہیں پیو گے تو کیا مر جاؤ گے یار؟ پیپسی نہیں پیو گے تو مر جاؤ گے؟ ان کے صابنوں سے نہیں نہاؤ گے تو کیا تمہارا جسم کا بدبو ختم نہیں ہوگا؟ ان کے شیمپو کو سر پر نہیں لگاؤ گے تو کیا آپ کے بال اسی طرح پراگندہ رہیں گے؟ ان کے کھانے کو نہیں کھاؤ گے تو کیا آپ بھوک سے مر جاؤ گے؟ کچھ تو کرو یار۔ 10,000 ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کیا گیا یار، آپ کے بس میں یہ بائیکاٹ ہے، یہ بائیکاٹ تو کرو یار۔ تمہارے بس میں جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے معاف ہے، پیسہ نہیں دے سکتے ہو، ٹھیک ہے معاف ہے، جا کر جہاد نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے معاف ہے، روڈ بند نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے معاف ہے، اپنے حکمرانوں کو نہیں للکار سکتے ہو، ٹھیک ہے معاف ہے، یہ تو کر سکتے ہو کہ دکان میں جا رہے ہو، ناشتے کے لیے بسکٹ لے رہے ہو اور آپ کو پتا یہ اسرائیلی بسکٹ ہے، اس کو رکھ کر آپ کسی پاکستانی بسکٹ کو لوگے، یہ تو کر سکتے ہو۔ یہ ساری چیزیں آپ کے معاف ہے، مگر جو آپ کے بس میں وہ تو کرو یار۔ پیپسی نہ
न पीना ये तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप पियो, इसका न पीना ये तो कर सकते हो। तमाम मुसलमानों से मेरा ये दरख्वास्त है कि ये कभी भी न कहो कि मेरे एक बोतल, एक साबुन, एक शैम्पू न खरीदने से उनको क्या फ़ायदा होगा। खुदा की कसम बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं भी ये बात कर रहा हूँ, तुम भी, वो भी, करोड़ों लोग ये बात कर रहे, करोड़ों लोग उनके मसनूआत को ख़रीद रहे। करोड़ों रुपए जब जमा हो जाएंगे, करोड़ों में से उनके पास भी उनका हिस्सा जा रहा है, और उन्हीं पैसों को वो फ़लस्तीनियों के नस्ल कुशी पर खर्च किया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, अगर आपके अंदर इतना वो बस में आपका नहीं कि आप कुछ कर सके, यार इतना ईमानी गैरत तो अपने अंदर पैदा करो कि इनके मसनूआत का बाइकाट करे। कौन ऐसा है कि कहेगा कि खुदा की कसम आज के बाद मैं इसराइल का कोई भी मसनूआत इस्तेमाल नहीं करूंगा। हाथ उठाकर अल्लाह से वादा करे, अल्लाह से वादा करे, अल्लाह आज के बाद कोई कोल्ड ड्रिंक इन लोगों का नहीं पीऊंगा। हाथ उठाकर अल्लाह से वादा करे, अल्लाह आज के बाद इनका कोई मसनूआत इस्तेमाल नहीं करूंगा। जिन दुकानदारों के पास उनके फ्रिज है, उनका माल है, वापस कर दे, खत्म कर दे। आपके कारोबार पर अल्लाह की कसम कोई सवाल नहीं आएगा, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। अल्लाह के लिए इतना करो, अपने मुसलमान भाइयों के लिए इतना करो, और इनका माल वापस करके अल्लाह से वादा करो, ए अल्लाह जब तक ये लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले पर जुल्म करते रहेंगे, अल्लाह मैं इनके मसनूआत का बाइकाट जारी रखूंगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इतना तो अपने ऊपर किसी मौलवी से जाकर न पूछो कि मौलाना ये क्या मामला है। अगर आपके अंदर ईमान का एक भी जरा है ना, एक भी जरा, तो आप बस अपने अंदर ये एहसास पैदा करो कि हमारा ये पैसा, इनमें से चाहे 1% भी हो, ये उनके पास चला जाता है, और वो वही पैसा फ़लस्तीनियों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों पर, सजदा करने वालों पर, अल्लाह के नाम लेने वालों पर, मस्जिद अक्सा की दिफा करने वालों के नस्ल कुशी पर उस पैसे को खर्च किया जा रहा है। तो अपने अंदर इंशाल्लाह इतना गैरत पैदा करेंगे, इतना गैरत जरूर अपने अंदर पैदा करो। मुसलमानों इतना बेहिस न बनो यार, इतने मुर्दे न बनो, इतने बेहिस न बनो, थोड़ा सा अपने अंदर एहसास पैदा करो। इतना जुल्म अगर काफिरों पर भी होता भी हम एहतिजाज करते, इतना नाजायज जुल्म अगर गैर मुस्लिमों पर होता भी हम एहतिजाज करते, क्योंकि यह इंसानियत के खिलाफ है। किसी बच्चे को मारना, औरत को मारना, बूढ़ों को मारना, अस्पतालों पर बमबारियां करना, इन वाशी लोगों से हमारे हुक्मरानों के तवक्कुआत है कि हम इनके साथ ताल्लुकात अच्छा रखेंगे तो ये हमारे ऊपर रहम करेंगे। अभी से इस चीज में अपना किरदार अदा करो, अपना हिस्सा डालो। एक दिन आएगा यही यहूदी मस्जिद हराम मक्का मुअज़्ज़मा पर भी कब्जा करेंगे, आप लोग देखते रहोगे। रसूलुल्लाह के रोज़ा मुबारक पर भी कब्जा करेंगे, आप देखते रहोगे। सऊदी अरब में जितने भी मुक़द्दस मुकामात हैं इनको मिलियामिट कर देंगे, आप देखते रहोगे। किसी भी मुसलमान को वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा अपने अंदर कम से कम इतना एहसास पैदा करो और अल्लाह से कहो, ए अल्लाह मेरे बस में जो है वो मैं करूंगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ने कुरान फरमाया कि मैंने हर बंदे को इतना ही मुकल्लफ और पाबंद बनाया कि जो उसके बस में हो, जो वो कर सकता हो। मैं और आप ये नहीं कर सकते कि लड़े, उनके मसनूआत का बाइकाट हम कर सकते हैं। अगर हम वो भी नहीं करेंगे तो फिर अपने मुंह से ये बात न करना कि काश रास्ता होता मैं चला जाता, मैं जिहाद करता। फिर ये न कहना कि मुझे यहूदियों और काफिरों से नफरत है। तुम उनके मसनूआत से नफरत नहीं कर सकते हो, उनके कोल्ड ड्रिंक से नफरत नहीं कर सकते हो, उनकी चीज़ों का बाइकाट नहीं कर सकते हो। तो आप ये काम जो आपके घर के अंदर है, आपके लिए बहुत आसान है, आपके लिए कोई तकलीफ नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। आप ये बाइकाट जैसे छोटा सा काम नहीं कर सकते हो, फिर आप कोई भी खैर का काम नहीं कर सकते हो। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।
इन बातों को कोई जज्बाती ना लो कि मौलाना बहुत जज्बाती हो गया, नहीं नहीं, खुदा की कसम ये इस और बाकायदा उलमा की इजलास हुए, बाकायदा इस्लामाबाद में अभी उस दिन बहुत बड़ा इजलास उलमा का हुआ और कहा कि ये चीज़ इस बात को हम फैलाएंगे बहुत ज़्यादा कि इनके मसनूआत को हमने नहीं लेना है। गुज़िश्ता दिनों ये बोतलों का सप्लायर बहुत बड़ा, वो बोल रहा था कि जिस इलाके में हम सप्लाई करते थे पहले जहाँ से 45-50 लाख हम सेल करते थे, अब वहीं से वो सेल सिर्फ 15 लाख रह गया है और ये मुसलसल नीचे जा रहा है और इसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। तो अगर हम इसी तरह हिम्मत करते रहेंगे, हम इसी तरह अपने अंदर इंफरादी तौर पर अगर हम इन चीज़ों का बायकाट करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। हम ये तो कर सकते हैं ना कि ये बायकाट करें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र के बाजार में नीलाम किया जा रहा था कि ना कौन है जो इसको खरीदेगा, आप नबी थे, तमाम लोग बड़े बड़े बोलियां लगा रहे थे। हज़रत यूसुफ तो बहुत खूबसूरत थे, आपका कीमत बहुत ज़्यादा था, आज के हिसाब से लोग लाखों और करोड़ों का बोलियां लगा रहे थे। एक बूढ़ी औरत कमर झुकी हुई लाठी का सहारा लेती हुई आ रही है। लोगों ने कहा आप कहाँ जा रहे हो? कहा मैं भी यूसुफ को खरीदने के लिए जा रही हूँ। कहा आपके पास तो कुछ है ही नहीं, कहाँ से यूसुफ को खरीदोगे? कहा मुझे पता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खरीद नहीं सकती हूँ, मगर जब क़यामत के दिन में अल्लाह कहेगा कि कौन थे यूसुफ को खरीदने वाले, तो उनके खरीदारों में मेरा नाम भी शामिल होगा, मेरा नाम भी शामिल होगा। मुझे 100% पता है कि मैं यूसुफ को खरीद नहीं सकती हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, कई मील पर फैला हुआ आग था, एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लाकर उस आग पर डाल रही है। तो किसी ने पूछा चिड़िया ये आपके इससे क्या होगा, आपके एक चूंच के एक कतरे पानी से क्या होगा? कहा मुझे पता है मेरे से कुछ नहीं होगा, मगर मेरे बस में इतना ही है, जब अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा कि मेरे खलील को आग में डाला जा रहा, तो कम से कम मेरे पास ये जवाब तो होगा कि अल्लाह मेरे बस में इतना ही था कि मैं अपनी छोटे से चूंच में पानी उठाकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो मेरे और आपके बस में सिर्फ इतना तो है ना कि इनके बिस्किट को न लिया जाए। सोशल मीडिया पर इनके मसनूआत का तमाम तर चार्ट्स आए हुए हैं, सोशल मीडिया पर इनकी जितनी भी मसनूआत है सब के नाम, तस्वीरें, सब चीज़ें आई हुई है। लिहाजा अगर आपके पास सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते हो, आपके पास मालूमात नहीं है, तो किसी ऐसे शख्स के पास चला जाओ जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हो, जिसके पास उनके मसनूआत की तस्वीरें और नंबरें हो, उनसे मालूम करो और अल्लाह से ये वादा करो, ए अल्लाह मेरे बस में इतना ही है कि मैं इन दरिंदों के मसनूआत का बायकाट करूँ, ए अल्लाह मैं इनका बायकाट जारी रखूँगा। हो सकता है इसकी वजह से अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमसे राज़ी हो जाए। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम सुनने वालों की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला